ہم دونوں ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ مغربی طرز کا یہ ہال بے حد نفیس اور ستھرا تھا۔ ہم بیٹھ گئے تو ایک چاق و چوبند بہرہ مؤدبانہ انداز میں جھکا۔ سر، آپ کا ناشتہ تیار ہے، مس صاحبہ کو اطلاع کر دوں؟ ہاں، عاطف نے جواب دیا۔ ایک اور ٹیبل پر ایک اکیلا ہپی کافی پی رہا تھا۔ دو ٹیبل اور بھی مصروف تھے، باقی ہال خالی تھا۔ تھوڑی دیر میں امتل بھی آ گئی۔ آج وہ پھر سرخ قمیض اور سفید پتلون پہنے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ صاف اور شفاف تھا۔ سرخ قمیض میں اس کے چہرے کی ہلکی زردی تازگی اور شگفتگی میں بدل گئی تھی اور وہ مسرور نظر آ رہی تھی۔ جب وہ کرسی پر بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ دنیا سے لاپرواہ اور اپنے آپ سے بے نیاز ہپی نے بھی اس پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ دراصل امتل کی شخصیت اور بانک پن اس بات کے متقاضی تھے کہ جس کے سینے میں دل ہو وہ اس کا نوٹس لے۔ میں نے چھیڑنے کی خاطر کہا، دیکھیے امتل، ہپی آپ کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ امتل ہنس پڑی۔ میری سرخ قمیض کو دیکھتا ہوگا، اسے ضرورت ہو تو دے سکتی ہوں، آپ پوچھ لیجئے اس سے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا اور بڑی نرمی سے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا پسند کریں گے؟ نو نو تھینکس، البتہ آپ کی کمپنی کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ اٹھ کر ہماری ٹیبل پر آ گیا۔ عاطف اور امتل نے اس سے ہاتھ ملایا۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال سرخ تھے، اس کے ہاتھ لمبے لمبے تھے اور اس کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی متانت اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ بہت مدھم لہجے میں بات کرتا تھا۔ امتل نے اس سے کہا، میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر ان کو میری سرخ قمیض کی ضرورت ہو تو میں انہیں دے سکتی ہوں۔ تھینکس تھینکس، وہ بھی ہنس پڑا۔ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کی لبھا دینے والی شخصیت کو۔ قمیض کو میں کیا کروں گا، میں تو ننگے بدن بھی رہ سکتا ہوں۔ میری شخصیت میں کیا دھرا ہے، ایک عورت میں رکھا ہی کیا ہے؟ کتنی دیر آپ میری شخصیت سے مسخر رہ سکتے ہیں؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں، اس نے تائید کی۔ عورت کا طلسم بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح ایک خوبصورت منظر کو ایک بار دیکھنے کے بعد انسان آگے سفر شروع کر دیتا ہے اور کسی نئے منظر کو دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے، اسی طرح عورت کا ساتھ بھی تھوڑی سی مسافت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ امتل نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ ہاں، سنیے وسیم صاحب، جن لوگوں نے زندگی کو برتا ہے وہ اس طرح نتائج اخذ کرتے ہیں اور پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں اور زندگی کے میدان میں نکل آتے ہیں۔ یہ انسانوں کی تلاش میں نہیں ہوتے، بس خوبصورت مناظر ڈھونڈتے ہیں، کھوئے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہی ہے انسان کی اصلیت۔ امتل، میں نے مشفقانہ لہجے میں کہا، میں نے سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے واقعی زندگی کو برتا ہے لیکن مرنے کو ان کا بھی جی نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے زندگی ضروری ہے۔ مرنے کو تو یہ ہپی بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ کب نکلتا ہے کہ زندگی ضروری ہے؟ آپ دیکھیے، آوارہ پھر رہا ہے، زندگی کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، کسی آدرش اور قدر پر یقین نہیں رکھتا، معاشرتی زندگی کے بوجھ سے آزاد نگر نگر پھرتا ہے، نہ نیکی کی تمنا رکھتا ہے اور نہ کسی کا حق چھیننے کا روادار ہے، آزاد پنچھی کی طرح بے مقصد پھریریاں لے رہا ہے۔ اب اس کے لیے زندگی کیا ضروری ہے اور موت اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ ہپی تجسس اور سوالیہ نگاہوں سے ہم سب کی طرف باری باری دیکھ رہا تھا۔ میں نے امتل کا زاویہ نگاہ اس پر واضح کیا تو وہ خوش ہو کر بولا، ہاں، مجھے مس سے اتفاق ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ ابھی وقت لگے گا کیونکہ میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے عقاب کا سا رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ مجھے قانون کا ڈر ہے۔ قانون کی باز پرس کی وجہ سے میں اپنی فطرت کو کچل رہا ہوں۔ یہ اچھی بات نہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ قانون کو ماننے والے ابھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم اپنی منشا کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ میں نے اسے ٹوکا، آپ حیوان کی طرح زندگی گزارنے پر کیوں بضد ہیں؟ چیرنے پھاڑنے میں آخر کیا راحت ہے؟ فطرت نے آپ کو احساس اور جذبے کی جو دولت بخشی ہے، آپ اس سے اپنا دامن کیوں خالی کرنا چاہتے ہیں؟ عقل سلیم کی برتری سے آپ کیوں خائف ہیں؟ اپنی بہن اور بھائی اور ان کی اولاد سے آپ راہ فرار کیوں اختیار کرتے ہیں؟ فطرت نے آپ کو محبت کی صلاحیت عطا کی ہے تو آپ اس صلاحیت سے کام کیوں نہیں لیتے؟ زندگی سے فرار میں اگر کوئی مثبت پہلو نکلتا ہے تو پھر مجھے قائل کیجئے،
ہپی نہایت شگفتہ انداز میں مسکرایا۔ مجھے بھائی اور بہن سے محبت نہیں ہے، یہ بات میرے خون ہی میں نہیں ہے۔ آپ اسے مجھ پر زبردستی کیوں تھوپتے ہیں؟ رشتے ناتے فضول قسم کی زنجیریں ہیں جنہیں ہم توڑ چکے ہیں۔ یہ زنجیریں اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے۔ آپ جانوروں کو دیکھتے ہی ہیں، جوان ہوتے ہی ماؤں اور باپوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ فطرتی جدائی ہے، زندگی سے فرار نہیں ہے۔ یا اللہ، میں سٹپٹا گیا۔ کیا واقعی یہ انسان بول رہا ہے؟ کیا انسان کی اصلیت سچ مچ یہی ہے؟ امتل مسکرا رہی تھی اور میری پریشانی سے محظوظ ہو رہی تھی۔ میں نے قدرے جھنجلا کر کہا، آپ میری بے بسی کا مزہ لے رہی ہیں۔ آپ کو ایک عمدہ ساتھی مل گیا ہے، آپ بہت خوش ہیں۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں، اس نے نہایت تسلی سے جواب دیا۔ جب آدمی ہارتا ہے اور لاجواب ہو جاتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ دوسرا سچ کہتا ہے۔ ہارنے والا اس سے متفق ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اس لیے مجھے خوش ہونا چاہیے۔ ہرگز نہیں، میں نے تردید کی۔ میں کسی سے متفق نہیں ہوا، نہ آپ سے اور نہ آپ کے ساتھی سے۔ میں آپ کو خوش ضرور دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر انسان کی نفی کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے تو مجھے افسوس ہے کہ میں ایسی خوشی آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ اپنے طور سے خوش رہیں، میرا اس خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ عاطف نے رحم طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا، لیکن امتل اسی طرح پرسکون تھی۔ آپ کے استقلال سے مجھے ہمدردی ہے۔ آدمی کو اسی طرح اٹل رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا دار لوگ مصنوعی سچائی کے علم بردار ہوتے ہیں۔ رہی میری خوشی، میں خوشی اور غم پر اعتقاد ہی نہیں رکھتی۔ خوشی آئے، غم آئے، میں اسے محسوس ضرور کرتی ہوں، مگر یہ مستقل ساتھی نہیں ہوتے۔ مجھے تو اپنے سانس پر یقین نہیں ہے، کیا بھروسہ آئے نہ آئے۔ عاطف نے گھبرا کر کہا، کیا ارادہ ہے؟ جیپ کافی دیر سے آئی کھڑی ہے۔ ہاں تو چلیے نا بھائی جان، خود آپ لوگ ہی تو بحث میں الجھ گئے۔ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ امتل نے ہپی سے اجازت لی۔ مجھے اس سے یک گنا خوشی ہوئی۔ آج پھر ہمیں ایک نیا سفر درپیش تھا۔ ہوٹل سے نکلتے ہی چھاؤنی شروع ہو گئی۔ سڑک کے دائیں بائیں فوجی بیرکیں تھیں۔ بائیں ہاتھ کی بیرک کے سامنے فوجی ٹرک اور جیپیں کھڑی تھیں۔ کچھ سپاہی ڈانگریاں پہنے ان کی صفائی میں مصروف تھے۔ کوئٹہ کی صاف ستھری چھاؤنی ہمیں بہت اچھی لگی۔ ہنا لیک اور اڑک کو جانے والی سڑک چھاؤنی کے عین بیچ میں سے گزرتی ہے۔ جیپ میں چلا رہا تھا۔ حسب معمول امتل ہم دونوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ مارکیٹ پہنچ کر میں نے ایک سپاہی سے اڑک جانے والی سڑک کے متعلق پوچھا۔ اس نے سارا نقشہ سمجھا دیا۔ اب ہم مطلوبہ سڑک پر آ گئے تھے۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال کی گفتگو پر مجھے کچھ ندامت سی ہو رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا رویہ جارحانہ ہو گیا تھا۔ امتل کی مسرت سے میں چڑ گیا تھا اور اس کی خوشی کے لمحوں کی نفی کی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے رویے میں سرکشی کی جھلک آ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ وہ ہیپی ہو جس کی منطق سے میں پریشان ہو گیا تھا اور جو دیکھتے ہی دیکھتے بساط الٹ رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، میں نادم تھا اور اب خاموش تھا۔ عاطف بھی گمبھیر ہو گیا تھا۔ ہاں، امتل کے متعلق نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ اس نے سیاہ اینک لگا رکھی تھی اور سامنے دیکھ رہی تھی۔ اب ہم چھاؤنی سے نکل رہے تھے۔ سامنے کوئٹہ کے خشک اور بلند پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ دور سے ان کا رنگ سرمئی ہو رہا تھا۔ جہاں سڑک پہاڑوں میں گم ہو گئی تھی، وہاں آمنے سامنے کے دونوں پہاڑ اس طرح ایک دوسرے کے گلے مل گئے تھے جیسے دو قوی ہیکل بھینسے سر ٹکرا کر لڑ رہے ہوں۔ جوں جوں ہم آگے بڑھتے گئے، توں یہ بھینسے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کا فاصلہ برابر بڑھ رہا تھا۔ جب ہم قریب پہنچے تو دونوں پہاڑوں کے درمیان نیم گیلی ندی ایسے لگی جیسے اونٹ کے جبڑوں کے درمیان زبان۔ کچھ اور آگے بڑھے تو بائیں ہاتھ کی پہاڑی پر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا، وزٹ ہنا لیک۔ یہاں سے ایک سڑک سیدھی اڑک کے چشموں کی طرف نکلتی ہے اور دوسری بائیں ہاتھ کو ہنا لیک کی طرف۔ اڑک کی نسبت ہنا لیک نزدیک تھی، اس لیے ہم ادھر مڑ گئے۔ اب ہلکی ہلکی چڑھائی شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم اوپر پہنچ گئے۔ خشک پہاڑوں کے درمیان 2-2.5 میل کے احاطے میں پھیلی ہوئی ہنا کی یہ مصنوعی جھیل واقعی غنیمت تھی۔ کینٹین سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہم جیپ کھڑی کر کے باہر نکل آئے۔ سرکاری عملے کے سوا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔
हन्ना की झील पर आज सबसे पहले पहुंचने वाले सयाह हम थे। बाएं हाथ ऊंचा पहाड़ था, दाएं हाथ को थोड़ी सी उतराई के बाद झील थी। कैंटीन और झील के दरमियान की ढलान पर छोटे छोटे प्लाट बने हुए थे जिनमें सब्ज घास लगी हुई थी। बच्चों के खेल कूद के लिए भी मुख्तलिफ दिलचस्पियां थीं। दूसरे लफ्जों में ये मुख्तसर सा पार्क था। झील तक उतरने के लिए खूबसूरत रविशें बनी हुई थीं। किनारे पर 3-4 छोटी छोटी कश्तियां भी खड़ी थीं। अमतुल कश्तियां देखकर बोली, लीजिए साहब, यहाँ तो कश्ती में सैर भी की जा सकती है। कैंटीन का अमला देख रहा था। 2 आदमी कश्तियों की तरफ उतर गए। ये मल्लाह थे और इस उम्मीद पर नीचे उतर गए थे कि शायद हम कश्ती में बैठकर झील की सैर करें। और ये अम्र वाक़या है कि खुश्क पहाड़ों की इस मसनूई झील में कश्ती में बैठकर सैर करना बहुत बड़ी अय्याशी थी। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हन्ना लेक जाकर वहाँ कश्ती में बैठकर सैर न करना झील बनाने वालों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती थी। 4 रुपया फी घंटा भी ज़्यादा न था। हमें नीचे उतरता देखकर मल्लाहों की बाछें खिल गईं और वो जल्दी जल्दी तकिए ठीक करने लगे। हम कश्ती में बैठ गए तो मल्लाह ने पूछा, साहब इधर सामने पहाड़ी की तरफ जाएंगे या झील का पूरा चक्कर लगाएंगे? पहाड़ी की तरफ चलो, वो झील के दरमियान जो पहाड़ियाँ हैं वहीं उतरेंगे। पैदल ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर घूमेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, अमतुल ने उससे कहा। मल्लाह ने नाव को धकेला। नाव आहिस्ता आहिस्ता सीने आब पर रवां हो गई। पानी की तह में सब्ज काई नजर आ रही थी जिसकी वजह से पानी का रंग भी सब्जी माइल नजर आ रहा था। जूं जूं हम आगे बढ़ते गए पानी गहरा और गंभीर होता जा रहा था। मसनूई झील अब पुरस्रार होती जा रही थी। चारों तरफ से अहाता किए हुए पानी की अजमत अब यकायक महसूस होने लगी। लेकिन अमतुल एक तरफ को झुकी हुई हाथ से झील के पानियों को चीर रही थी और मोतियों की तरह कटते हुए पानी से लुत्फानंदोज हो रही थी। मल्लाह चप्पू चला रहा था और अमतुल के खेल से महजूज हो रहा था। थोड़ी देर में हम अंडे की शक्ल की गोल पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। मल्लाह ने कश्ती किनारे लगाई। हम तीनों छलांग लगाकर उतर गए। ऊपर जाने के लिए पगडंडियां बनी हुई थीं। ऊपर अच्छा खासा लान बना हुआ था। पत्थर की पक्की छतरियां और उनके नीचे पत्थर ही की बनी हुई कुर्सियां थीं। अमतुल लपक कर एक कुर्सी पर बैठ गई। वाह खूब, इतना ढेर सारा पानी, इन पहाड़ों में समुंदर तो आ नहीं सकता। विजार्ड हन्ना लेक कोई ऐसा बुरा भी नहीं है। क्या बुरा है? मैंने बज़ाहिर उसकी तायीद की। जिन लोगों ने समुंदर नहीं देखा, दरिया नहीं देखे, उनके लिए हन्ना लेक समुंदर ही है। हाँ, वो हंस पड़ी। वो कुएं वाला मेंढक बेचारा अपने खोल में बंद कुएं की पहनाइयों पर नाजा, दरअसल जो अपने खोल से बाहर आ गया मर गया। कैसे मर गया? आतिफ ने चौंक कर पूछा। जैसे हम, अमतुल ने जवाब दिया। भटकते फिर रहे हैं, सरगर्दां हैं, मरना और क्या होता है? न मंजिल न ठिकाना, घूम रहे हैं। खोल से बाहर आने का नतीजा है ये। हम कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने उसकी बात काटी। हम जुस्तजू में हैं। हम पा लेंगे एक दिन। ये मेरा ईमान है, ढूंढने वाला जरूर पाता है। हाँ, आप पा लेंगे अनका को। वो उठ खड़ी हुई। हम अनका की तलाश में हैं। आप जरूर अनका को पा लेंगे। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर झील में फेंका। एक छोटा सा भंवर चारों तरफ फैल गया। उसकी नन्ही नन्ही लहरें धीरे धीरे सीने आब में तहलील हो गईं। आपने ये नन्हा सा भंवर देखा ना वसीम साहब? ये नन्ही नन्ही लहरें जो अभी थीं अभी नहीं हैं, आप इनकी तलाश में हैं। आप उन्हें जरूर पा लेंगे। मैं चंद लम्हे उसकी नन्ही सी नाक को तकता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, शायद मैं इन लहरों को न पा सकूं, मगर इन लहरों की मुहर्रिक कुव्वत की तलाश जारी रख सकता हूं। इस पत्थर को ढूंढ सकता हूं जिसने सतह आब को मुतजलजल कर दिया था, और इस हाथ को भी जिसने इस पत्थर को इस काम के लिए उकसाया था, और इस ख्वाहिश को भी जिसने इस पत्थर को मुतहर्रिक कर दिया था। तखय्युल परस्ती, महज तखय्युल परस्ती। आधी से ज्यादा दुनिया इसी के सहारे जीती है। मंजर परस्ती और ख्याल परस्ती में आखिर क्या फर्क होता है अमतुल? मंजर एक हकीकत होता है। खूबसूरत मंजर से मन में गुदगुदी पैदा होती है। खूबसूरत ख्याल से भी मन में गुदगुदी पैदा होती है। हाँ, लेकिन मनफी गुदाज रूह को कुव्वत नहीं बख्शता। वक्ती तसल्ली किस काम की?
आर्ज़ी शादाबी में नुमू नहीं होती, पानी के चंद कतरों से बीज नहीं फूटते, ख्याल महज जाड़े की चांदनी हैं। उसने फिर एक पत्थर उठाकर फेंका और इसका खूबसूरत जिस्म लचका गया। मैं इस लम्हे सोच रहा था, ये लड़की नादानिस्ता रूह के अंदर की सैर करा देती है। ये काम इंसान खुद नहीं कर सकता, अकेला आदमी अपनी रूह में नहीं उतर सकता। तखय्युल परस्ती की मनफी तस्कीन के बखिए इसने 2 लफ्ज़ों में उधेड़ दिए थे। आतिफ के हाथ में कोई किताब थी, मुझे चुप पाकर उसने किताब बंद कर दी। हमारी नज़रें टकराईं। आतिफ की निगाहों में सवाल था, लेकिन मेरे चेहरे पर शायद बेकरारी नहीं थी, इसलिए वो परेशान नजर आ रहा था। फिर भी जैसे चुप रहने की वजह समझना चाह रहा हो। मैं दिल में सोच रहा था, आतिफ, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि हमारी नस्ल जिंदगी के इस मोड़ पर आ गई है जिसकी आरजू न जाने बेहतरीन इंसानों की कितनी नस्लों ने की होगी। अब लोग एक दूसरे की आंखों में झांक कर एक दूसरे के ज़हन का एक्सरे ले लेते हैं। पहले ज़माने में लोग आलम पीरी में बालिग नज़र होते थे, अब नौजवानी में बलूगत से आगे निकल जाते हैं। जहानत ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। खित्ता अर्ज बहुत सुकड़ गया है, यह खतरे की अलामत है। शायद अमतुल ठीक कहती है। आप खामोश क्यों हो गए वसीम साहब? अमतुल ने मुड़कर देखा। आइए ना, यहाँ आइए भाईजान, आप भी आइए। ये पानी की हल्की हल्की लहरों को देखिए, किसी दोशीज़ा की नरम नरम नाजुक नाजुक उंगलियों की तरह। कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। कभी कभी हमारी सोचें बड़ी बेदर्द हो जाती हैं। ऐसे में एक अजीब भाग दौड़ सी लगी रहती है और हमें खबर भी नहीं होती कि जो कुछ हमारे पास है जिंदगी के लिए मिला है। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और अचानक हंस पड़ी। ठीक है, यही तो बात है, मैं आपकी मैयत में बोर नहीं होती। ये एक हल्का सा एतराफ़ था, मगर इसमें ज़रा भी संजीदगी नहीं थी। मैंने हंसते हुए कहा, जो बात दिल की गहराइयों से कहता हूँ वो भी आपको मजाक लगती है। अफसोस है कि मैं आपको समझा भी नहीं सकता कि हकीकत क्या है। उसने पत्थर उठाकर फेंका। दिल की गहराइयाँ होती तो आपके साथ ज़रूर उतरती। हम जहाँ हैं ये बड़ी ठीक जगह है, सफ़र जारी है, इसमें कोई मज़ायका नहीं। अमतुल, मैं बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, मगर मेरी आवाज़ गंभीर हो गई थी। मैं समझता हूँ कि आप अपने सीने में छुपाए हुए जज्बात के मोतियों से एक मोती भी लुटाने के लिए तैयार नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। शायद मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन उसकी गोल गोल आंखों में एक सोगवार तासुर था। मेरे सीने में कुछ नहीं, मेरा दामन खाली है। किसी के पास भी कुछ नहीं होता, कोई भी कुछ नहीं लुटा सकता। आप किताबें न पढ़ते तो बेहद मुतमईन आदमी होते। हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं, हालांकि हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। हम जज्बात की बात करते हैं, हालांकि हम बिल्कुल दरिंदे हैं। अफसोस है कि आपने किताबों से लफ्ज़ चुरा लिए हैं। अब इन अल्फाज के मफहूम और नताइज के लिए सरगर्दा हैं, मगर नतीजा कहाँ से मिलेगा? शराबों से कभी प्यास नहीं बुझती। मुझे महसूस हुआ कि मुझ में सकत आ रही है। चलिए, मैं अल्फाज का पीछा छोड़ देता हूँ। मैंने एतमाद से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अल्फाज का नहीं, आदमी का पीछा करता हूँ। अल्फाज नताइज से आरी होते हैं, लेकिन आदमी और आदमी का सामना बेनतीजा नहीं हो सकता। बुलबुल की चहकार को आप लफ्ज़ नहीं कहेंगी, पपैये की पी पी को आप राग कहेंगी, रोग नहीं। ये चहकार जिंदगी है और ये राग जिंदगी का राग है। क्या इस सतह पर आदमी से आदमी नहीं मिल सकता? क्यों नहीं? उसने सुबक लहजे में कहा। यह हैवानी सतह है, अफजाइश नस्ल का एक पैमाना है। इसके लिए दलाइल और वसाइल ढूंढने की क्या ज़रूरत है? हम असल में यही तो हैं। मेरे पांव तले से एक बार फिर ज़मीन खिसक रही थी। आतिफ ने मेरी तरफ देखा और आंखें झुका लीं। मैं तो खैर बेबस था ही, मगर उसकी बेबसी भी काबिल रहम थी। दरअसल हम दोनों ही काबिल रहम थे। हम दोनों की चाहत के रंग मुख्तलिफ थे, मगर शिद्दत एक जैसी थी। अमतुल जैसी जीरक लड़की से हमारे दिलों की बात मख्फी तो नहीं रह सकती थी, लेकिन उसका किरदार इतना अजीब व गरीब था कि इजहार तमन्ना और खुलूस के कोई मानी ही नहीं रह गए थे। इसे न उन बातों की परवाह थी, न ज़रूरत और न हमदर्दी। यही क्या कम था कि वो हम दोनों को बर्दाश्त करती थी और दिल खोल कर रख देती थी। वो तो किसी के साथ एक कदम रखने की रवादार नहीं थी। मैं सोचता, यही गनीमत है कि मैं इसके साथ हूँ। हम कश्ती में वापस आ रहे थे और वो बराबर कश्ती के किनारे से लगी
पानी से खेल रही थी। इसे ज़रा भी खबर नहीं थी कि हम क्या सोच रहे हैं और किस अजियत में मुब्तला हैं और हमारे दिल कितने भारी हैं। किनारे पर उतरे तो ऊपर एक कार आकर रुक गई थी। हम तीनों उधर मुतवज्जे हो गए। एक औरत, दो बच्चे और एक मर्द कार से निकल आए। आतिफ चौंका, ये तो ज़कीउद्दीन लगता है, सीएसपी, शायद यहाँ बदली हो गई हो। अमतुल हंस पड़ी, तब तो आपके दोस्त होंगे भाईजान। अरे लंगोटिया, एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे हैं, मुझसे 1 साल आगे था। बड़ा गप्पू मगर था बहुत ज़हीन। ऊपर पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे को ललकारा और बेसाख्ता गले लग गए। आतिफ ने कहा, यार तुम तो कहीं असिस्टेंट कमिश्नर थे फ्रंटियर में गालिबन, यहाँ कैसे? ज़कीउद्दीन मुस्कुराया, ज़रा धीरे से यार, ज़रा धीरे से, सारा डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है। देखते नहीं यहाँ का सारा स्टाफ दम साधे खड़ा है। भाई मैं यहाँ का डिप्टी कमिश्नर हूँ। अरे, आतिफ ने उसके सीने पर हल्का सा घोंसा जमाया, तुम और ज़िले भर के डिप्टी कमिश्नर? हूँ यार, सच कह रहा हूँ, ज़रा तमीज़ से बोलो। आओ तुम्हें बीवी से मिलवाऊँ। नैन, ये मेरे कॉलेज का दोस्त है आतिफ। डिप्टी कमिश्नर की बीवी ने आतिफ को सलाम किया। आतिफ हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ, भाई आओ ना, देखा हमने नीचे से ही पहचान लिया था। यार ज़की, ये मेरी बहन है अमतुल और ये हमारे दोस्त वसीम। मैंने डिप्टी कमिश्नर से हाथ मिलाया। अमतुल ने भी सलाम किया और बच्चों की तरफ मुतवज्जे हो गई। आतिफ ने कहा, यार कमाल है, डिप्टी कमिश्नर तो खैर हो ही गए हो, लेकिन इतने प्यारे प्यारे बच्चों के बाप कैसे बन गए? शट अप, डिप्टी कमिश्नर हंसा। दरअसल बात यह है, आतिफ ने कहा, सीएसपी बन जाने के बाद बीवियां तो अच्छी मिल ही जाती हैं। बच्चे दोनों भाभी पर गए हैं। हम सब हंस रहे थे। आतिफ की शोखी ज़रा कम हुई तो डिप्टी कमिश्नर बोला, भाई कोयटा कब आए हो, कैसे घूम रहे हो? आतिफ ही उससे मुखातिब था। सैर कर रहे हैं, सीज़न मना रहे हैं, बाप दादा की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, तुम्हारी तरह मुलाजिम थोड़ी हैं। मैं जानता हूँ, डिप्टी कमिश्नर जिच होकर बोला, लेकिन खुदा के बंदे ज़रा तो संजीदा हो जाओ। ये तुम्हारी बहन और तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे कि क्या वाकई डिप्टी कमिश्नर ऐसे होते हैं? डिप्टी कमिश्नर की खूबसूरत बीवी पहली बार खुलकर हंसी। हल्के प्याजी रंग की साड़ी में मलबूस ये खुशपोश और खुश अदा औरत हंसते हुए बहुत अच्छी लगी। डिप्टी कमिश्नर बोला, लो अब तो बस करो, मेरी बीवी भी मुझ पर हंसने लग गई है। यार बहुत सालों के बाद मिले हो, दिल चाहता है कि तुमसे कुश्ती लड़ूं, यानी डिप्टी कमिश्नर से। कमाल है, कॉलेज के ज़माने में हम लोग कितने गैर जिम्मेदार होते हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं और बाद में डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं। अमतुल ने मुदाखलत की, भाईजान इनसे कोई वक्त तय कर लीजिए और फिर दिल की भड़ास निकाल लीजिए, ये सबके सामने आप वाकई ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा यार ठीक है, हम चलते हैं, शाम को डिनर तुम्हारे साथ करेंगे, लॉर्ड्स में मोटर भेज देना। लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रोग्राम तो बताया नहीं, डिप्टी कमिश्नर ने पूछा। प्रोग्राम नहीं बता सकते। आतिफ ने मुस्कुराकर हम दोनों की तरफ देखा। मेरे साथी बड़े अनोखे लोग हैं, ये दूसरों की नहीं सुनते, अपनी सुनाने के आदी हैं। मुझे उनकी मर्जी से चलना पड़ता है। खैर ठीक है, मगर डिनर पर ज़रूर आना। सब ने एक दूसरे को सलाम किया। अमतुल ने बच्चों को प्यार किया और हम जीप में बैठ गए। कुछ देर बाद हम उड़क जाने वाली सड़क पर आ गए तो मैंने हंसकर कहा, आतिफ आप तो छुपे रुस्तम निकले। अमतुल भी हंसने लगी। मैंने पहली बार भाईजान को इतनी तरंग में देखा। बेचारा डिप्टी कमिश्नर। दरअसल बात यह है, आतिफ भी हंसने लगा। ज़की मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, हमने मिलकर बहुत वारदातें की हैं। ये जोड़ तोड़ का बहुत माहिर था, लड़ने से भी नहीं कतराता था। उसकी शरारतें और अब डिप्टी कमिश्नरी, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कितना संजीदा और बाइख्तियार ओहदा है ज़की जैसे खलंडरे के पास। कॉलेज में यही होता है, सभी खलंडरे होते हैं, यही लोग आगे जाकर कौम के मेमार बन जाते हैं। भाईजान अपने बारे में तो सोचते नहीं, कितना बड़ा कारोबार संभाल रखा है, कितनी बड़ी जायदाद की देखभाल करते हैं। आप भी तो उन्हीं के साथी थे, और अब क्या हैं? वकील और कचहरी का आपको तजुर्बा, बिजनेस के उतार चढ़ाव का आपको शऊर, समाजी और दुनियावी ताल्लुकात पर आपकी नज़र, ज़िंदगी का कौन सा शोबा है जो आपकी हद नज़र से बाहर है? फिर एक सरकारी अफसर बनना कौन सा मसला है? हाँ ये सब तो ठीक है, आतिफ ने तायीद की। मुमकिन है बहुत ही अच्छा अफसर हो, मगर इसे देखकर मुझे हंसी आती है। एक दफ़ा हम दोनों ने मिलकर एक लड़के को पीटा था, बात बहुत बढ़ गई थी, बड़ी मुश्किल से कॉलेज से निकलते निकलते बचे थे। अब याद आता है
تو عجیب سا لگتا ہے۔